जमात 10वीं ਸਾਹਿਤਕ ਕਿਰਨਾਂ ਭਾਗ 2 ਰੁੱਖਾਂ ਬਾਝੋਂ ਧਰਤੀ। ਸਿਲੇਬਸ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਲਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦ ਉਮੀਦ ਸਰ ਦੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਸਾਹਿਤਕ ਕਿਰਨਾਂ ਭਾਗ 2 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਵਿਤਾ ਰੁੱਖਾਂ ਬਾਝੋਂ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਵਿਤਾ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਕਵੀ ਹਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਵਾ ਜੀ। ਕਵੀ ਨੇ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਮਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਦਾਸ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਨੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਸਮਾਜਕ, ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜੋ ਸਾਂਝ ਹੈ ਉਸ ਉੱਪਰ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜਲ, ਰੁੱਖ ਅਤੇ ਕੁੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਓ ਕਵਿਤਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਸੰਗ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੁੰਦਾ ਏ ਪ੍ਰਤੀਤ, ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਕਰਨਗੇ ਸੇਵਾ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੀਕ। ਰੁੱਖਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਲੱਭਣਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਸਿਰਨਾਵਾ, ਰੁੱਖਾਂ ਬਾਝੋਂ ਧਰਤੀ ਜਿੱਦਾਂ ਬਿਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਵਾਂ। ਰੁੱਖਾਂ ਬਾਝੋਂ ਧਰਤੀ ਜਿੱਦਾਂ ਬਿਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਵਾਂ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ, ਰੁੱਖ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਵਾਯੂ ਮੰਡਲ ਸ਼ੁੱਧ। ਰੁੱਖ ਬੂਟੇ ਹੀ ਕੱਟੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਛਾਵਾਂ, ਰੁੱਖਾਂ ਬਾਝੋਂ ਧਰਤੀ ਜਿੱਦਾਂ ਬਿਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਵਾਂ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿਨ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਅਧੂਰਾ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ, ਗੱਡੇ ਮੰਜੀਆਂ ਹੱਲ ਸੁਹਾਗੇ ਨਾਲੇ ਬਣਨ ਮਕਾਨ। ਰੁੱਖਾਂ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਉਗਾਲੀ ਕਰਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ, ਰੁੱਖਾਂ ਬਾਝੋਂ ਧਰਤੀ ਜਿੱਦਾਂ ਬਿਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਵਾਂ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਸਾਧੂ ਸੰਨਿਆਸੀ ਕਰਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰ, ਜੀਵਨ ਬੰਦੇ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਇਸ ਦਾ ਹੈ ਕਿਰਦਾਰ। ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਝੱਖੜ ਸਹਿੰਦੇ ਗਰਮ ਹਵਾਵਾਂ, ਰੁੱਖਾਂ ਬਾਝੋਂ ਧਰਤੀ ਜਿੱਦਾਂ ਬਿਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਵਾਂ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਸਹਾਰਾ, ਬੇਘਰ ਲੋਕੀ ਰੁੱਖਾਂ ਥੱਲੇ ਸੌਂ ਕੇ ਕਰਨ ਗੁਜ਼ਾਰਾ। ਪਾਏ ਆਲਣਾ ਰੁੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਘੁੱਗੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਕਾਵਾਂ, ਰੁੱਖਾਂ ਬਾਝੋਂ ਧਰਤੀ ਜਿੱਦਾਂ ਬਿਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਵਾਂ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰੁੱਖਾਂ ਹੇਠ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਬਣ ਡਾਰਾਂ, ਤੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿੱਕਲੀ ਪੈਂਦੀ ਨੱਚਦੀਆਂ ਮੁਟਿਆਰਾਂ। ਜੀਵੇ ਪਿੱਪਲ ਪੇਕੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਿਸ ਤੇ ਪੀਂਗ ਚੜਾਵਾਂ, ਰੁੱਖਾਂ ਬਾਝੋਂ ਧਰਤੀ ਜਿੱਦਾਂ ਬਿਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਵਾਂ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਬੂਟੇ ਚੋਂ ਬਣਦੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ, ਲਛਮਣ ਵਰਗੇ ਯੋਧੇ ਦੀ ਬੂਟੀ ਨੇ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਫਲ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਫੁੱਲ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ, ਰੁੱਖਾਂ ਬਾਝੋਂ ਧਰਤੀ ਜਿੱਦਾਂ ਬਿਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਵਾਂ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿਨ ਸੋਚੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤੇ ਜੰਗਲ ਲਏ ਉਜਾੜ,
जाने जा अनजाने होया कुदरत संग खिलवाड़। रुख होवण तां मींह पैंदे ने, रुख होवण तां मींह पैंदे ने, चढ़ के आउण हवावां। रुखां बाजों धरती जिदा बिन बच्चियां दे मावां। अगे कहंदे हन कि सूबा नंबर 1 बने आओ लाइए इन्ने रुख। धरती ते महफूज रखिए पानी रुख ते कुख। धी जम्मे तां रुख लगाओ, धी जम्मे तां रुख लगाओ, जग दियां लो दुआवां। रुखां बाजों धरती जिदा बिन बच्चियां दे मावां। ते अंतिम पैरे विच कहंदे हन कि रुख अपना कर देंदे ने सब कुछ ही कुर्बान। रुख अपना कर देंदे ने सब कुछ ही कुर्बान। नाल मनुखां दे सड़दे ने आखिर विच शमशान। बोल शेखवा रुखां दा मैं, बोल शेखवा रुखां दा मैं, किदां कर्ज चुकावां। रुखां बाजों धरती जिदा बिन बच्चियां दे मावां। रुखां बाजों धरती जिदा बिन बच्चियां दे मावां। ऐसी कविता पाठ। आओ बच्चों हुण कविता दी व्याख्या करते हाँ। प्यारे बच्चों, प्रश्न तुसी इस तरह लिख सकते हो कि यह काव्य सतरां जां यह काव्य टोटा साडी पाठ पुस्तक ਸਾਹਿਤਕ किरणा भाग 2 विच दर्ज कविता रुखां बाजों धरती विचों लिया गया है। इस दे कवि जसवंत सिंह शेखवा हन। इस कविता विच कवि ने रुखां नूं धरती दा अनिखड़वां अंग दस्या है अते धरती लई, मनुखां लई, होर जीव जंतुआं लई अते वातावरण लई रुखां दी महत्ता नूं बयान किया है। आओ व्याख्या देखते हाँ। कवि कहता है कि धरती संग होंद विच आए हुंदा ए प्रतीत, कि इस तरह प्रतीत होना लगना। इस तरह लगता है कि धरती दी होंद नाल, भाव धरती होंद दा मतलब अस्तित्व विच आना, कि धरती दे अस्तित्व विच आउण दे नाल ही उस दे नाल ही रुख भी आए। भाव रुख अते धरती इकट्ठे ही जो हन अस्तित्व विच आए हन। मानवता दी करनगे सेवा रहिंदी दुनिया तीक, ते ये जो रुख हन ये शुरू तो ही मनुखता दी सेवा करते आ रहे हैं। तो ये लगता है, ये प्रतीत हुंदा है, प्रतीत होना भाव लगना, ये लगता है कि जब तक ये दुनिया रहेगी ये मनुखता दी सेवा करते रहणगे। रुखां चों ही लभना सानू कुदरत दा सिरनामा, रुखां बाजों धरती जिद्दां बिन बच्चियां दे मावां। कवि कहता है कि जेकर असी कुदरत दा सिरनावा, सिरनावा भाव पता, जे असी कुदरत दा पता लभना है, कुदरत नूं असी मिलना चाहुंदे हां तां सानू वो रुखां चों ही प्राप्त होवेगी। भाव कुदरत जो है रुखां दे विच ही कुदरत दा निवास है। कुदरत दा पता रुखां विचों ही मिलदा है। रुखां बाजों धरती जिद्दां बिन बच्चियां दे मावां, ते बिना रुखां दे धरती दी हालत ओह होवेगी जिस तरह बच्चियां तो बिना मां दी हुंदी है। भाव धरती उदास अते दुखी हो जावेगी। अगे कहते हैं कि मान बख्शिया रुखां नूं गुरु नानक गौतम बुद्ध। इन्हां काव्य सतरां विच कवि जो है रुखां दी जो धार्मिक अते इतिहासिक जो महत्व है उस उपर चानना पाउंदा है। कवि कहता है कि रुखां नूं गुरु नानक देव अते गौतम बुद्ध जहे जो साडे धार्मिक आगू हन, संत होए हन, उन्होंने भी मान दिता है। इत्थे श्री गुरु नानक देव जी दी साखियां विच जो असी पढ़ते हाँ कि वो रुखां थल्ले आराम करते सन, जां नाग ने आके उन्हां उपर छां कीती, उस साखी वाल इशारा है। ते दूजा सानू पता है कि गौतम बुद्ध नूं भी ज्ञान की प्राप्ति एक रुख हेठ बैठ के ही होई सी। सो उस वाल इशारा करते हुए कवि कहता है कि रुखां नूं गुरु नानक देव अते गौतम बुद्ध जहे महान संतां ने, धार्मिक आगुआं ने भी मान दिता है। रुख ही करते रहिंदे साडा वायुमंडल शुद्ध। इत्थे एक साइंटिफिक जो तत्थ है उस बारे दस्या गया है कि रुख जो हन कार्बन डाइऑक्साइड लैके ते ऑक्सीजन जो छड्डदे हन,
इस तरह साडे वातावरण नूं वो शुद्ध करते हैं। रुख बूटे ही कट्टे गए तो कौन करेगा छावां। एक गंभीर प्रश्न पूछता है कवि कि जेकर रुख बूटे कट्टे गए तो सानू छावां कौन करेगा, सानू सहारा कौन देवेगा। तो अगे फिर कहते हैं कि रुखां बाजों धरती जिद्दां बिन बच्चियां दे मावां, कि रुखां तो बिना धरती की हालत उस तरह उदास दुखी होवेगी जिद्दां बच्चियां तो बिना माँ की हुंदी है। अगे कहते हैं कि बिना रुखां दे रहे अधूरा खेतां विच किसान। इन्हां पंक्तियां विच, इन्हां सतरां विच कवि जो है रुखां दा जो खेतीबाड़ी नाल संबंध है उस उपर चानना पाउंदे हन। वो दसदे हन, कहंदे हन कि बिना रुखां दे रहे अधूरा खेतां विच किसान। जो साडा किसान है खेतां विच रुखां तो बिना वो अधूरा है, उसका बहुत कम जो है रुखां नाल सरदा है। बहुत सारे जो खेतीबाड़ी के संद हैं। अगे कहता है कि गड्डे मंजियां हल सुहागे नाले बनन मकान। जो गड्डे हन, मंजियां हन, हल सुहागे जो खेती के संद हैं वो रुखां की लकड़ नाल ही बनते हैं। इस तरह रुख जो हैं किसान की सहायता भी करते हैं। रुखां थल्ले बैठ उगाली करदियां मझां गावां। जो साडियां मझां ते गावां जो साडे पशु हैं वो भी चारा चरण तो बाद अपना घाह खाण तो बाद उसनूं पचाउण लई रुखां हेठ, रुख की छां हेठ बहिंदे हन। इस तरह किसान का खेतीबाड़ी का रुखां नाल गूढ़ा संबंध है। अगे कहते हैं कि रुख हुंदे साधु सन्यासी करदे परोपकार। इत्थे रुखां की तुलना साधुआं सन्यासियां नाल कीती गई है कि जिस तरह साधु अते सन्यासी अपने सुख की इच्छा नहीं करते बल्कि सुख वंडते हैं, उस तरह रुख भी साधु सन्यासियां का जीवन जिउंदे हैं। वो परोपकार करते हैं, दूजे उपर उपकार करते हैं। जीवन बंदे लई समर्पित इसदा है किरदार। किरदार का भाव हुंदा है आचरण, चरित्र। इन्हां दा चरित्र, रुखां दा चरित्र जो इस तरह का है कि ये अपना सारा जीवन बंदे लई, मनुख लई समर्पित कर दिंदे हैं। गर्मी सर्दी झक्खड़ सहिंदे सहिंदे गर्म हवावां। इस मौसम की मार, चाहे गर्मी होवे चाहे सर्दी होवे, ये सारे मौसमां की मार अपने उपर सहिंदे हैं ते मनुख का भला करते हैं। इहो जिहा इन्हां दा किरदार, इहो जिहा चरित्र रुखां दा है। ये परोपकारी हैं। फिर अगे उही गल है कि रुखां बाजों धरती जिद्दां बिन बच्चियां दे मावां, के रुखां तो बिना धरती की हालत उस तरह दुखी जां उदास मां जिही होवेगी। अगे कहते हैं कि अपने सिर ते छत नहीं होरां नूं देण सहारा। इत्थे जो है मनुख दा अते मनुख दे नाल नाल जो पशु पंछी हैं उस उपर भी जो है रुख जो है उपकार करते हैं। कहते हैं कि अपने सिर ते छत नहीं होरां नूं देण सहारा। रुख खुले आसमान हेठ खड़े हैं, अपने सिर उपर छत नहीं है ते बेघर लोकी रुखां थल्ले सौं के करन गुजारा। ते जो लोग बेघर हैं, भाव जिन्हां दे घर नहीं हैं, वो रुखां दे थल्ले सौं के गुजारा करते हैं। उन्हां मनुखां लई भी रुख सहारा हैं जिन्हां दे अपने घर, जिन्हां कोल अपनी छत नहीं है। अगे कहते हैं कि पाए आलने रुखां उत्ते घुग्गियां चिड़ियां कावां। इत्थे तक कि जो पंछी हैं वो भी अपने आलने, अपने घर रुखां उपर ही बनाउंदे हैं। भाव मनुख अते पशु पंछी जो हैं वो रुखां तो सहारा, रुखां दे सहारे जिउंदे हैं। अगे वही लाइन है कि रुखां बाजों धरती जिद्दां बिन बच्चियां दे मावां, कि रुखां तो बिना धरती की हालत बिना बच्चियां दे मावां जही उदास अते दुखी हुंदी है, होएगी। अगे कहते हैं कि रुखां हेठ इकट्ठियां होईयां कुड़ियां बन बन डारां, तीयां लगियां किकली पैंदी नचदियां मुटियारां। इत्थे जो है रुखां दी जो मनुख नाल सभ्याचारक सांझ है उस बारे लेखक जिक्र करता है कि कहता है कि रुखां हेठ इकट्ठियां होईयां कुड़ियां बन बन डारां, कि जदों भी कोई वार त्यौहार आउंदा है तो जो कुड़ियां हैं वो रुखां दे हेठ ही इकट्ठियां होंदियां हैं। डारां भाव कतारां बना के उत्थे इकट्ठियां होंदियां हैं। तीयां लगियां किकली पैंदी नचदियां मुटियारां। ते जदों तीयां दा त्यौहार आउंदा है तो उत्थे ही पिंगा पांदियां हैं, नचदियां हैं, टपदियां हैं, खुशी मनाउंदियां हैं। ते अगे कहता है कि जीवे पिपल पेके पिंड दा जिस ते पींग चढ़ावां, कि कुड़ियां ये अरदास करदियां हैं कि मेरे
पेके पिंड दा जो पीपल है वो फलदा फुलदा रहे। भाव वो अरदास अगर इत्थे भाव ये है कि मेरा पेका पिंड पीपल दे फलन फुलन दा की भाव है कि मेरे पेके जो मेरा पेका घर है उत्थे खुशियां खेड़े वसदे रहन। अगे कहते हैं कि कुदरत वल्लों हर बूटे चों बनदी कोई दवाई। एक होर महत्व है रुखां दा कि रुखां विचों दवाइयां भी प्राप्त हुंदियां हन। लक्ष्मण वर्गे योधे नूं दी बूटी ने जान बचाई कि जो इत्थे एक इतिहासिक पक्ष नूं चुकदे हन कि जो रावण नाल लड़ाई विच जद लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए सन तो संजीवनी बूटी नाल वो ठीक होए सन। इस तरह रुख ने ही उन्हां दी जान बचाई सी। फल भी दिंदे फुल भी दिंदे ठंडियां छावां। रुखां तो सानू फल भी मिलते हैं फुल भी मिलते हैं तो ठंडियां छावां भी असी रुखां दियां माणदे हां। अगे कहते हैं कि बिना सोचे बंदे ने बहुत जंगल लए, बिना सोचे बंदे ने बहुत जंगल लए उजाड़, जाने जा अनजाने होया कुदरत संग खिलवाड़। कवि कहता है कि बिना सोचे समझे बंदियां ने जो है मनुखा ने है पेड़ पौधों नूं कटिया है, जंगल साफ कर दिते ते जाने अनजाने वो कुदरत नाल इन्हां रुखां नाल खिलवाड़ करदा रहा। रुख होवण तां मीह पैंदे ने चढ़ के आउण घटावां। इत्थे जो है एक विग्यानिक पक्ष है जो कहते हैं कि रुखां नाल रुख जो हन वो मीह लियाण विच सहायक हन। उस दा जिक्र करते हुए कहता है कि रुख होवण तां मीह पैंदे ने चढ़ के आउण घटावां कि रुखां नाल ही जो मौसम संबंधी मीह संबंधी घटनावां घटदियां हन उहदे विच भी रुखां दा अपना रोल है, अपना महत्व है। अगे कहते हैं कि सूबा नंबर 1 बने आओ लाइए इन्ने रुख, धरती ते महफूज रखिए पानी रुख ते कुख। कि अपने सूबे नूं अपने प्रदेश नूं आपां इन्ने रुख लाने हन कि रुखां दे मामले विच साडा प्रदेश जो है वो नंबर 1 बन जावे। ते उस नाल होर अगे की अपील करते हैं, कहते हैं कि धरती ते महफूज रखिए पानी रुख ते कुख। ते असी धरती दे उपर जल भी बचाना है, रुखां दी भी रखिया करनी है अते धीआं दी भी रखिया करनी है। एक समाजिक जो बुराई है भ्रूण हत्या दी उस दा विरोध करते हुए कहते हैं कि असी धीआं दी रखिया करनी है, असी जल भी बचाना है, असी रुख भी बचाने हैं अते कुख विच कुड़ियां दी रखिया भी करनी है। धी जम्मे तां रुख लगाओ जग दियां लौ दुआवां। एक अपील करते हैं, प्रेरणा देंदे हैं कि जद भी धी पैदा होवे तां सानू रुख लगाना चाहिदा है तां जो आने वालियां पीढ़ियां हन सानू दुआवां देण। जो लास्ट दा पैरा है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ कि रुख अपना कर देंदे ने सब कुछ ही कुर्बान। कि रुख जो है अपना सारा कुछ मनुख उपर कुर्बान कर देंदे हन। नाल मनुखां दे सड़दे ने आखिर विच शमशान। सारा जीवन तां साथ दिंदे ही हन ते जद मनुख दी मौत हो जाती है तो उस दे नाल भी सड़दे हन। इन्ना अंत तक रुख जो हन मनुख दा साथ दिंदे हन। बोल शेखवा रुखां दा मैं किद्दां कर चुकावां। फिर कवि शेखवा जी कहते हैं कि मैं रुखां दा इन्ना उन्हां दा कर्ज है मेरे सिर उपर, मैं किस तरह वो चुका सकदा हाँ। रुखां बाजों धरती जिदा बिन बच्चियां दे मावां। वो कहते हैं कि रुखां तो बिना धरती की हालत ओहो जी है जिस तरह दुखी एक माँ हुंदी है जिस कोल बच्चे नहीं हुंदे, जिस दे नाल बच्चे नहीं हुंदे। इस तरह कवि शेखवा जी ने रुखां बाजों धरती कविता विच रुखां दी महत्ता बारे दसिया है, उस उपर प्रकाश पाया है। आओ बच्चिओ हुण अभ्यास दे प्रश्न देखते हैं। अभ्यास दे प्रश्नां विच पहले भाग दा पहला प्रश्न है कि मानवता दी सेवा करन लई कौन धरती संग होंद विच आए। मानवता दी सेवा करन लई रुख धरती संग होंद विच आए। दूजा प्रश्न है कि रुख साडा वातावरण किवें शुद्ध करते हैं। तो रुख साडा वातावरण शुद्ध करन विच महत्वपूर्ण भूमिका निभाउंदे हन। वो वातावरण विचों कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं अते जीवन लई जरूरी ऑक्सीजन छड्डदे हन। इस तरह
वातावरण शुद्ध बनिया रहिंदा है। अगला प्रश्न है कि मुटियारां दे जीवन विच रुखां दी की महत्ता है। तो मुटियारां दे जीवन विच रुखां दा विशेष महत्व है। त्योहारां वेले मुटियारां जो हन वो रुखां हेठ इकट्ठियां हुंदियां हन, नचदियां हन, गाउंदियां हन, किकली पाउंदियां हन अते पींगां झूटदियां हन। इस तरह त्योहारां नाल संबंध होण करके, सांझ होण करके रुखां दा मुटियारां दे जीवन विच विशेष महत्व है। अगला प्रश्न है कि धरती ते रुख दे साथ दी किहड़े-किहड़े रिश्ते नाल तुलना कीती गई है। तो धरती ते रुख दे साथ दी बच्चियां अते मां दे रिश्ते नाल तुलना कीती गई है। धरती नूं मां दस्सिया गया है अते रुखां नूं उस दे बच्चियां तरह दस्सिया गया है। अगला प्रश्न है कि बंदे ने बिना सोचे की कित्थों उजाड़ लिया है। तो बंदे ने बिना सोचे धरती तो जंगलों नूं उजाड़ लिया है। अगे प्रश्न है कि कवि ने रुखां तो बिना धरती की तुलना किस नाल कीती है। तो कवि ने रुखां तो बिना धरती की तुलना बिन बच्चियां दी मां नाल कीती है। इस सवाल विच अगे पूछा गया है कि की तुसी इस विचार नाल सहमत हो। तो हाँ, बिल्कुल असी इस विचार नाल सहमत हाँ, क्योंकि जिस तरह बच्चियां तो बिना मां अधूरी हुंदी है, वो दुखी, उदास, बेजान नज़र आउंदी है, उस तरह जेकर धरती उपर रुख नहीं होणगे तो धरती भी बेजान, दुखी अते बेरंगी नज़र आवेगी। फिर पूछा गया है कि जे तुसी सहमत हो तो तुसी इस दी संभाल विच किवें योगदान पाओगे। तो इस दी संभाल विच योगदान पाउण लई असी लोकां नूं जागरूक करांगे, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ रुख लाउण लई प्रेरित करांगे। इस दे नाल नाल जो पहले रुख लगे हुए हैं उन्हां दी साਂਭ संभाल करांगे अते हर साल खास मौके उपर रुख लाउण दा, घट्टो घੱਟ एक रुख लाउण दा प्रण कर सकते हाँ। अगे प्रश्न है कि हेठ दित्तियां काव्य सतरां पढ़ के पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दिओ। तो काव्य सतरां इस तरह हैं कि सूबा नंबर 1 बने आओ लाइए इन्ने रुख, धरती ते महफूज रखिए पानी रुख ते कुख, धी जम्मे तां रुख लगाओ जग दियां लो दुआवां, रुखां बाझों धरती जिद्दां बिन बच्चियां दे मावां। पहला प्रश्न है कि कवि अनुसार नंबर 1 सूबा किवें बनाया जा सकता है। तो बहुत ज़्यादा गिनती विच रुख लगा के नंबर 1 सूबा बनाया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि धरती उत्ते की सुरक्षित रखण दी लोड़ है अते क्यों। तो धरती उपर पानी, रुख अते कुख सुरक्षित रखण दी लोड़ है, क्योंकि इन्हां तो बिना मनुखी होंद जो है उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। अगला प्रश्न है कि धी जम्मण ते रुख क्यों लगाउणा चाहिदा है। धी जम्मण ते रुख इसलिए लगाउणा चाहिदा है कि एक तो इस तरह रुखां दी गिणती वधेगी, वाधा होवेगा, दूजा धीआं दा सत्कार भी होवेगा। असल विच कवि इत्थे इह दस्सण दा यतन कर रहा है कि रुख अते धीआं दोनों समाज लई बहुत जरूरी हैं। अखीरला प्रश्न है कि इन्हां सतरां दे कवि दा नां दसो। तो इन्हां सतरां दे कवि जसवंत सिंह सेखवां हैं। अगे प्रश्न है कि पाठ के आधार उपर ठीक या गलत के निशान लाओ। पहला है कि रुखां बिना धरती बच्चियां वाली मां समान है। बच्चियां वाली मां समान नहीं, बिन बच्चियां दी मां समान है, इसलिए पहला गलत है। दूजा है कुड़ियां दे जीवन विच रुखां दी कोई थां नहीं, बहुत थां है, इसलिए यह भी गलत है। तीजा है कि लक्ष्मण की जान बूटी ने बचाई सी। बिल्कुल आया है कविता विच कि लक्ष्मण की जान बूटी ने बचाई सी, सही है। मनुख ने अपनी सहूलियत लई जंगल उजाड़े हैं। बिल्कुल ठीक है ये। मीह आउण विच रुखां दा भी हथ हुंदा है। बिल्कुल सही है ये। अगे प्रश्न है कि खाली थावां भरो। रुख डैश संग होंद विच आए। तो रुख धरती संग होंद विच आए। दूजा है वायुमंडल डैश रखण विच रुखां दी बहुत भूमिका है। तो वायुमंडल शुद्ध रखण विच रुखां दी बहुत भूमिका है। अगे है कि रुख डैश वर्गे परोपकारी हुंदे हन। तो रुख साधु सन्यासियां वर्गे परोपकारी हुंदे हन। नैक्सट है कि पंछी रुखां उत्ते डैश पाउंदे हन। पंछी रुखां उत्ते आलणे पाउंदे हन।
ਅਖੀਰਲਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਡੈਸ਼ ਦੇ ਦਰਖਤ ਤੇ ਪੀਂਘ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਪੀਪਲ ਦੇ ਦਰਖਤ ਤੇ ਪੀਂਘ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਾਕ ਬਣਾਓ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਹੋਂਦ। ਹੋਂਦ ਭਾਵ ਅਸਤਿਤਵ। ਪਾਣੀ ਤੇ ਰੁੱਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੋਂਦ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਹੈ ਪਰਉਪਕਾਰ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ। ਰੁੱਖ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੀਜਾ ਹੈ ਝੱਖੜ। ਝੱਖੜ ਦਾ ਭਾਵ ਤੇਜ਼ ਹਨੇਰੀ। ਝੱਖੜ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਖਾੜ ਸੁੱਟਦੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਸਮਰਪਿਤ। ਸਮਰਪਿਤ ਭਾਵ ਅਰਪਣ ਕਰਨਾ। ਰੁੱਖ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਸਮਰਪਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਕਿੱਕਲੀ। ਕਿੱਕਲੀ ਇੱਕ ਲੋਕ ਨਾਚ ਹੈ। ਕੁੜੀਆਂ ਰੁੱਖਾਂ ਹੇਠ ਕਿੱਕਲੀ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਖਿਲਵਾੜ। ਖਿਲਵਾੜ ਦਾ ਭਾਵ ਗੰਦੀ ਖੇਡ ਜਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਮਹਿਫੂਜ਼, ਸੁਰੱਖਿਅਤ। ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੁੱਖ ਤੇ ਕੁੱਖ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖੇ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਕੁਰਬਾਨ। ਕੁਰਬਾਨ ਦਾ ਭਾਵ ਨਿਛਾਵਰ ਹੋਣਾ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ। ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਉਹ ਭੂਮੀ ਜਿੱਥੇ ਮੁਰਦੇ ਸਾੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਧਰਤੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਲੱਗੇਗੀ। ਕਰਜ਼। ਕਰਜ਼ ਭਾਵ ਕਰਜ਼ਾ। ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਰੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਦੇ ਵੀ ਉਤਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਰੁੱਖਾਂ ਬਾਝੋਂ ਧਰਤੀ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਸਿਲੇਬਸ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ।